Welcome back, students. Today I will lecture about some dynamic surfaces. For students जिन्होंने अभी join किया मैं repeat कर देती हूँ. I give lecture on the elements, which type of elements and how you can research on your topic, how you can get elements, how you can arrange the elements. Um, Anybody can explain the previous lecture जितना भी आपको समझ आया कोई भी कोई रिपीट कर सकता है नहीं हरी आप यस मैम मैं यस प्लीज मैम आपने बताया कि डायनेमिक सरफेस लेनी है हमने उसमें हमने ना कोई भी अपना जो कंपोजिशन हमने कैंसिल शीट पे की है उसमें से हमने एलिमेंट्स लेने हैं पूरा कंपोजिशन हमने उस पे नहीं करना डायनेमिक जीन्स पे हमने उसमें से कंपोजिशन में से एलिमेंट्स लेने हैं और उसे हमने कंपोज करना है जीन्स पे वेरी वो गुड फ्रंट एक्स्ट्रा वो फ्रंट पे भी आ सकता है बैक पे भी जा सकता है मतलब अगर फेस है तो उसे हम हाफ फ्रंट पे लेकर उसके बाद बैक पे लेके जा सकते हैं और मैम अगर कोई गोल्स वगैरह है उसमें कोई डिजाइन है तो उसको हम फ्रंट पे कंपोज कर सकते हैं बैक पे भी कंपोज कर सकते हैं इट्स अप हम ये हमारे कंफर्ट जोन पे है कि हम उसको कैसे डिजाइन कर रहे हैं yes it's up to you how you can compose your design on the paint okay you can just make a large element any element and you can arrange it according to your concept. Firstly, I will explain you what are the elements. In your topic, I gave you a topic. Hudalil Jawad. आप लोगों के लिए मैं फिर से repeat कर रही हूँ. Firstly, you come to know what is the element. Element है क्या? I gave you a topic on pop art. You have research on pop art and get information. You get knowledge, enough reference according to your theme. When you get knowledge and you have some pictures. So it may be a star, it may be a circle, it may be a portrait form. These are called your research. Okay, in your research there are many pictures, there are many things, there are stars, there are circles, there are some lines, there are some portraits. These are called elements of your design in pop art. Is it clear? In Yes, your sir. previous assignment, Mughal art, you are researching on Mughal art. You get different flower and geometrical pattern. You get different animated and human figurative elements. These are called elements of design in Mughal art. Okay, on your first assignment, I gave a topic on William Morris. You all guys just researched on William Morris and get information about natural and some animated figures. You just download that data. Okay? On your data, the elements were leaves, some flowers, some animated figures. बट वो इतने ज़्यादा नहीं थे बट ज़्यादा उसका वो नेचर इंस्पिरेशन ज़्यादा उसका वो था ठीक हो गया but in your topic right now you have the element of some portraits and some sunglasses like bubbles, it may be stars, circles, straight lines. These are called elements in your work. Firstly, basic elements, dot. When you put a dot on your sheet, it was an element. When you put a next dot, you join the one dot to another dot, you make a line, different shapes of line. Different style of line. Different style of line make a shape, different formation, volume. You create a volume of a shape
आप लोग क्या कर रहे हो, एक से दो लाइन जोड़ते हो तो वो एक पूरी शेप बन रही है। अब टू लाइंस हैं, ठीक है, पहले तो डॉट्स आके टू डॉट्स को आपने अटैच किया तो वो एक पूरा आपने लाइन बनाई। इट मे बी अ कर्व लाइन, इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन। That curve and straight line make different shapes. It may be a flower shape, it may be animated, or it may be a human figurative shapes. It may be वो stars and उसमें कोई और कोई elements आ रहे हैं। ठीक हो गया? ये आपकी वो चीजें बन रही हैं। Now you have elements. Okay, next you can compose that elements according to your concept, according to your knowledge, according to your perception. Okay, अब उसमें क्या है, आपने नॉलेज सारा ले लिया, रिसर्च कर ली। आपने रिसर्च करने के बाद कैंसन शीट के ऊपर वो पूरा डिजाइन अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली यू जस्ट कंपोज इट, और पेंट भी हो गया। ठीक हो गया? अब आप क्या कर रहे हो, you have to apply your design on a product. देखो, जब आपने एक डिजाइन पेपर पे बना लिया बट आप एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करे, योर डिजाइन इज टोटली यूजलेस until you will cannot make any product. आप उसको किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, उसका तो कोई भी फायदा नहीं है। Being a fashion designer, being an interior or textile designer, you have to apply your design on a product. Okay, so that's why I give you assignment, just make a composition, and your next part is apply your composition, apply your design on a product. ओके, अब आपके पास क्या आ गया, डिजाइन एलिमेंट्स है, आपने उसके कंपोजिशन रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपोजिशन रूल्स क्या है, पैटर्न, एम्फसाइज, shape, harmony, rhythm, eye movement, balance, so you have to follow the proper scale, variation of element, ये सारी चीजें आपने ले आए और आपने एक डिजाइन कंपोज कर लिया पेपर पे, रेफरेंस से पेपर के ऊपर डिजाइन ले आए। अब वो पेपर के ऊपर डिजाइन जो है वो किस तरह से आप फैब्रिक के ऊपर लेकर आ रहे हो, किस तरह से आप वुड के ऊपर लेकर आ रहे हो, किस तरह से आप किसी और सरफेस के ऊपर लेकर आ रहे हो, ठीक है, इज टोटली ऑन यू, हाउ यू कैन अरेंज योर सरफेस, हाउ यू कैन मेक योर सरफेस मोर यूनिक। ठीक है, अब देखो, इट मे बी आपके पास एक पोर्ट्रेट है, आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, आप एक पूरी पेंट के ऊपर आपका वो फेस नहीं आ रहा, आप उसको राउंड साइड पे लेकर जा सकते हो, आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। नो अगेन, कंपोज योर वर्क, ट्राई टू अवॉइड योर कॉपी वर्क। मुझे किसी का कॉपी वर्क नहीं चाहिए, मैं बार बार ये रिपीट कर रही होती हूँ। ठीक है, आपने खुद से जैसा भी है खुद से अरेंज करो। मुझे पूरी फैब्रिक आपकी वो जो जीन्स है वो भरी भी नहीं चाहिए कि आप उसको पूरा एक वो डिजाइन से आप फिलअप कर दो। इट मे बी आप उसको वन साइडेड अरेंज करो, इट मे बी आप उसको, अगर आप बोथ साइडेड आपने उसकी अरेंज करनी है तो उसको थोड़ी एलिमेंट से लेकर आओ, एक दो एलिमेंट्स से ले आओ डिटेयरली, फिर उसके छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स कुछ डिटेल ऐड करके उसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आओ, थोड़ा स्प्रेड करके लेकर आओ। ठीक है, उसमें थोड़ी मूवमेंट आए। अब डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरह से डिजाइन एप्लीकेशन करते हो। ओके, आफ्टर द लर्निंग आउटकम ऑफ योर टॉपिक आई विल शो, बट आई हैव डन इट, बट मैं आप लोगों को फिर अरेंज कर देती हूँ कि किस तरह से आप कोई भी लो डेनिम के लिए एक्रेलिक पेंट आपने यूज करने होंगे। अब एक्रेलिक पेंट आपके वाटर बेस होने चाहिए, चाहे वो चीप है या फिर आप वो न्यू बाय कर रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट इज टोटली ऑन यू कि वो किस तरह से लेकर जाना है। ठीक है, आप उसको अप्लाई करो, पहले एक स्मॉल पीस ऑफ डेनिम ले लो, ठीक है, उसको अप्लाई करो कि कलर की क्या नेचर आ रही है उसकी। उसके बाद जब आप कलर कर लेते हो, ठीक है, अप्लाई डेनिम के ऊपर आप क्या करोगे, ये सारे कलर अप्लाई कर लिए डिफरेंट, जस्ट चेक इट आउट कि उसके क्या कलर इफेक्ट आ रहा है। ड्राई हो जाएगा, बटर पेपर ऑन अ डेनिम, जब ये ड्राई होगा
उसको आयरन करो, क्योंकि वो जितना कलर है वो फैब्रिक के यॉन के अंदर स्टक हो जाए, जो धागे हैं, कपड़ा धागे से बनता है ना, उसके अंदर सारे स्टक हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। वॉशिंग के बाद आप इफेक्ट देखोगे कि इसका इफेक्ट कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, बट ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। Next, color application, how you can apply your color on a fabric. ओके, जो भी स्टूडेंट आए हैं, कि मैंने भी आपको रिपीट कर दिया लेक्चर, बट ट्राई करो कि आप लोग टाइमली आया करो। आई हैव ऑलरेडी गिव यू 30 मिनट्स। ठीक है, तो उसमें एडजस्ट कर लिया करो जो भी होता। And the next, if you're using dark background, you can apply white color firstly. ठीक है, व्हाइट कलर आप अप्लाई करोगे, उसमें जब कलर आप ऊपर उसके ऊपर रेड करते हो, येलो करते हो, तो उसका कलर इफेक्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस वीडियो। अगर आपकी सरफेस लाइट है, लाइट डायनम कलर है, वाइट कलर है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट इफ यू आर यूजिंग डार्क बैकग्राउंड, तो आपने पहले वो पूरा एरिया जो आपका आ रहा है स्पेसिफिक, उसको वाइट करोगे, वाइट कलर अप्लाई करोगे, देन यू कैन यूज योर रिक्वायर्ड कलर। यहाँ तक आप मुझे बताओ कि आप लोग सब क्लियर हो? कोई ऐसा स्टूडेंट किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं फिर बताने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज ट्राई टू मेक योर असाइनमेंट गुड। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बोलो कि हम जान छुड़ाएं, क्योंकि मैंने इस पे बहुत लेक्चर दे दिया हुआ है। मुझे पहले शॉर्ट करो कि आप लोग सबको समझ आ गई है। हुदलिल बेटा, आर यू क्लियर नाउ? Yes, ma'am. जवाद Yes, ma'am. और एहसन, एहसन ने भी ज्वाइन नहीं किया अभी तक। On fabric, especially on a fabric that's very dark. Now, before I start, I slid this freezer paper in between, and you want to make sure that you do paint from soaking glue. And the paint some glue is for to allow the paint to dry a little softer. Now it looks milky when you apply it, but it does dry clear. Okay, so what I did was I just kind of applied it to the shape that I'm going to paint this rose. So what you can maybe have done before is just to kind of sketch out. And I'm just using a chalk. Just a rough outline. So this is where I'm going to put the leaves. And then if you don't follow this exactly, don't worry about it, because just water will take all that off and will remove it. Okay, so now I'm going to take my 3/4 flat, pick up a little bit of this medium, and I'm just going to paint this rose the color that I wanted, and this is Algerian crimson. So if you just want to, by having that medium underneath, now with my brush, I'm going to pick up a little bit of the pink that I created. That was just a mixture of white and this red. And I'm going to go back and forth. And this palette I love, because it's got a little narrow strip here to put all your paints, and then a big area to do your blending. So here, really push down and blend, and that's getting the paint to go inside the brush, which is real important. You just want to make sure the colors are not all mixed together. So when you do pick up paint, make sure the pink goes over the pink, the red goes over the red, and very carefully blend it. Now I'm going to add this with the pink on the outside. Look at that. Look how smoothly it applies.
So what I'm doing now with the pink on the outside is just painting my petals slightly inside where I painted the background. Brush, and then releasing pressure and on the tippy toe. So when I say tippy toe, it just means you're right on the chisel and there's no pressure at all. So you want to start like this to this until you see the mixture here, until you get it the way you want it. Okay, I think that looks good. Now I'm ready to do it right over here. Now I'm going to take the heel on my brush, and I call this the heel, which is the very bottom of the brush. I'm using that to kind of fill in the center. So I show you this leaf that has two. I'll show you this leaf, these two leaves. I'm going to have this one overlapping this leaf here. So what you want to do is first paint the leaf that's going to be underneath. And it's okay to turn your surface. I'm going to turn it this way so it'll be easier to turn the brush. So same thing, fill in, get it really close to the very bottom here. And it's just more the middle that you want to focus on. Okay. Yeah. As much, because this is going to cover. I'm going to paint the veins and the leaves here. So I'm going to take my script liner and put it in water. I'm going to pick up a little bit of the dark green, a little bit of the medium, and then right on the tip, create that little stem there. Okay, so I'll do that over here. And right over here, I'm going to paint some rose buds. I'm going to switch now to my smaller brush. Make sure you wet it, get all the water out. And I'm going to pick up a little bit of brown and bright flowers on top. Okay, guys, your submission date is 5th January, and hope you can understand your all lecture, but right now, if you guys have any problem regarding to your assignment, you can ask. You have 5 minutes for the questions, because the next 20 minutes I will discuss some weaving assignment of textile department. Are you clear now? Yes, ma'am. Okay. So interior Ma'am, and fashion एक्सक्यूज मी department. मैम Yes. मैम हमने जो आपको जो पेंटेड शीट पे जो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है उसमें जब हम उसको कंपोज करेंगे पैंट के ऊपर डेनिम के ऊपर तो हम एडिशन कर सकते हैं ना अपनी कॉम्पोजिशन में कर लो एडिशन. ठीक है ठीक है. ओके और कुछ आप लोगों ने डेनिम के ऊपर एक्रेलिक प्रिंट यूज करना है, फैब्रिक प्रिंट यूज नहीं होता है. डेनिम के ऊपर किस तरह यूज करना है ये चीज मैंने आपको लेक्चर में दे दी हुई है. मैं वीडियोस भी सेपरेटली अपलोड कर दूंगी, लेक्चर भी अपलोड कर लूंगी. उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू हैव टाइम राइट नाउ. 5th January is your submission date, and it's your second last assignment. After this assignment, I will give you project on a final submission for the final submission. Okay, so try to complete it on given time. Okay, interior and the fashion department, you can leave this class, and only textile students will still here, and I will give you some remarks on your
weaving products. Have you guys uploaded your work or not? Yes, ma'am, uploaded. Okay, that's good. Let's start your assignment. Week 12. Yes, ma'am, week 12. Yes, ma'am. मैम वो मैंने एक और पिक्चर अपलोड करनी है तो वीक 12 में नहीं कर सकता क्योंकि सारी फिर खत्म करनी पड़ेगी. It's okay. I cannot see your work. I don't know why. मैम वीक 12 में अपलोड किया मैंने तो. आप सबने कर ली हुई असाइनमेंट अपलोड? Yes, ma'am. Yes, no. वजीहा, रोहा, इन लोगों को बोलो कि अभी असाइनमेंट अपडेट करें. वजीहा नहीं कर सकती होंगी. मैम मैं अभी नहीं कर सकती असाइनमेंट सबमिट और मेरी थोड़ी सी रहती भी है. और बेटा उसमें मैंने ये बोला था कि आप कोई भी ना कर सकते हो, कुछ भी जितना भी काम किया हुआ आप कर सकते हो. मैम लेकिन मेरी अभी नहीं हो सकती, मेरा वो क्या कहते हैं ओके अकाउंट फाइन. बंद है. अब्दुल हसीब. यस मैम. वेरी नाइस. थैंक यू मैम. इज देयर एनी? यस. हसीब, इसको अभी फिनिश करना है ना आपने? यस मैम, थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है इसकी साइड से. साइड से सारी फिनिशिंग रहती है अभी. ठीक मैम. आप इसको ना हैमिंग भी कर सकते हो और हैमिंग के साथ आप ना बीड्स भी ऐड कर सकते हो इस सारे की एजेस पे. ब्राउन वुडन बीड्स आप यूज करो, ये बहुत अच्छा बन जाएगा. मैम एक्चुअली बीड्स मैंने ना लिए थे बट मैं बीड्स का ये सोचा था कि अगर ये टेबल मैट है, इसको अगर टेबल पे हम प्लेट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं तो बीड्स लगे होंगे तो प्लेट्स नहीं रख सकेंगे. नो 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 नो, साइड एजेस. यस ओके. मैम. और इसको बैक साइड पे यू जस्ट अटैच ऑन द with fusing और some foaming sheet. ओके. बिल्कुल वो जो ना थिन लेयर केक होती है, अब वो इसके ऊपर अप्लाई करो, बैक साइड पे इसको अटैच करो उसके साथ, क्योंकि ये जो आपके अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगा फिर. ठीक. ठीक है. बट ठीक गुड है. एफर्ट, गुड हसीब. अब ब्राउन वुडन बीड्स लो, इसके सारे एजेस पे ना हैमिंग कर लो, या यू कैन यूज एप्लिक, हैंड एप्लिक विद बीड्स. ये भी ऑप्शन है. आप फिर मशीन एप्लिक भी करवा सकते हो बीड्स वाली, उससे ये पूरा जो है ना आपका एक बड़ा एक फाइन सरफेस आ जाएगी. ठीक. मैम जो बिल्कुल आउटर लेयर है उस पे ना, बिल्कुल ये जो आपने व्हाइट आपने लगाया हुआ है ना जी. फिनिशिंग के लिए व्हाइट, इसको टर्न करोगे ना. जी मैम. ठीक है. और इसके एजेस पे बिल्कुल एज लाइक ये इसके ये एज होता है. ठीक है. वेरी गुड हसीब, गुड एफर्ट. थैंक यू मैम. आप समझ आ गई मैं आपको किस तरह से बता रही हूँ? यस मैम, आ गया मुझे समझ. दैट्स गुड. नेक्स्ट रिम्शा. गुड रिम्शा. Thank you, ma'am. सेंटर में आपका फैब्रिक कौन सा है? ये अच्छा लग रहा है. मैम ये प्रिंटेड फैब्रिक है और ब्लैक जो है वो वेलवेट है. और मैम मैंने इसकी बैक साइड पे भी प्लेन फैब्रिक लगाया है. ठीक है. आप इसको ना वो जो हमारी एक होती है ना
इसकी जो फिनिशिंग करनी है ना वो बड़ी नाइसली करना। ओके मैम। कैसे करोगी? मैम मैंने सोचा था इसके पूरे बॉर्डर पे कोई लेस लगा के ना, ब्लैक कलर की या नेट की। तबाह नहीं करना इसको। नहीं मैम नहीं। आप पता है क्या करोगे, जो पिलो पाइपिंग होती है ना, एक होती है थिन, सबसे थिनेस्ट लेयर, यस मैम। वो लोगी, उससे इसको बनाओगी। अगर ये ओवल शेप में आ रहा है तो इसको ओवल में ले जाना, ओके मैम। ठीक है। और उसका पता है क्या करना, ये जो प्रिंटेड फैब्रिक आपके पास है, यस मैम। नहीं मैम, खत्म हो गया। ओके ब्लैक से कर लो फिर। ओके मैम। आप इसके साथ गोल्डन भी यूज कर सकते हो। बट मैम ब्लैक ज्यादा ग्रेसफुल नहीं लगेगा। ब्लैक कर लो, मगर वो इसकी फिनिश ना बड़ी अच्छी सी करना। ठीक है मैम। और ये प्लेन वीव आपने की है, सेंटर में आपकी ये कौन सी वीव आ रही है, 12, और सैटिन वीव कौन सी है? मैम सेटिन वीव है। सेकंड, वो दोनों बीच में मर्ज करती हैं। नो मैम, पहले 12 है फिर सेटिन है। ब्लैक तो प्लेन है ना? मैम ठीक है, हाँ जी, वो फिर 12 और सैटिन आपने वो सेंटर में दोनों कर दिए। अगर आप ना ऐसा करते ना कि सेंटर में सैटिन कर लेते और बॉर्डर्स आप प्लेन और उसमें 12 में ले जाते, तो वो आपकी ना एक थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाती। मैम अब तो हो गई है। अब हो गई, आप रहने दो, बट गुड एफर्ट। ओके मैम, थैंक यू। वाह ईशा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईशा गुड। Can you explain your product? Ma'am, I just used a plain plastic sheet with two different colors of ribbon and one velvet purple ribbon and covered it up with lappa होता है pink color का, four-sided background. I just covered with it and tassels लगाया है मैंने to giving a proper shape or proper look to a table mat. Very good, very creative ईशा। ईशा ने बोला मैं मिड टर्म का ना पूरा काम मैं इसमें करूंगी। वेल डन। Isha, can you send me that video on WhatsApp group? Yes, ma'am. मैं अभी सेंड करती हूँ। और बैग भी मैंने कवर कर दी थी, बैग सारी मैंने कवर करके उसी शीट के साथ उतने साइज की काट के, और साइड पे वही जो मैंने पिंक कलर का बैग लगा दिया था ताकि कहीं से मैस ना क्रिएट हो। Very nice, very good. Okay. Ruha, 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 Ruha. Okay. रूहा का भी अभी काम नहीं है, वजीहा का भी नहीं है। वजिया, आप क्या स्क्रीन शेयर करके मुझे अपनी असाइनमेंट शो कर सकते हो? मैम नहीं, अभी मैंने उसको ना प्रॉपर नहीं किया हुआ, बस अभी कटिंग ही हुई है। मैंने स्टार्ट आप किया जितनी भी किया हुआ है ना, इट मे मैम, मेरी बी। बस कटिंग हुई है, मेरा स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ। मैंने आज इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ऐसे नहीं किया करो। देखो अब वो बच्चे जिन्होंने काम अभी कर रहे हैं, एटलीस्ट जहाँ पे मिस्टेक है या कुछ, मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ ना कि आप इसको इस तरह से बना लो। यस मैम, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा सा बिजी थी तो इस वजह से नहीं कर पाई। ओके।
Yes, Anush. यस मैम, मैं भी आई हूँ क्लास में। I know. असाइनमेंट्स आपकी हैं पास अभी कि नहीं है? मैम वो मैंने ना मैसेज किया, एक्चुअली मेरे भाई की ना तबीयत नहीं ठीक, तो वो हॉस्पिटल एडमिट है। तो अभी ना घर में भाई, बड़े भाई भी नहीं है और मामा भी नहीं है, तो मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से फ्री होके घर जाती हूँ ना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। ओके। आप लोगों ने अगर कोई वीविंग रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन करना है, आप लोग अभी पूछ सकते हो। मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ फिनिशिंग को लेके, मुझे थोड़ा सा और समझा दें। कहाँ पे कंफ्यूज हो आप? मैम जो मैंने इसके साथ बनाया ना छोटे मैट्स भी, और उनकी साइड्स पे सही सिलाई कर रहे हैं ना, तो वो आ नहीं रहा कर्व। कर्व आपने लेकर आना है उसको। यस मैम, यानी कि बहुत सही नहीं रहा। मैम पिक्चर्स खोलें तो दिखाता हूँ। फर्स्टली बैक साइड पे ना आप इसको अटैच करो फ्यूजिंग के साथ, ठीक है? इसकी बैक साइड पे मैंने ना लगाया हुआ, मैं आपको शो कर रहा हूँ। हाँ जी। किसके साथ अटैच करें? बुकरम पेपर जो होता है ना, फ्यूजिंग शीट। जी मैंने लगाया हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। हसीब आप करो, ऑन करो, शेयर करो। मैम मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट कैमरा से। हम्म। हसीब अनम्यूट योर माइक। मैम अब फिर से बोलो। जी मैम। अब फिर से बात करो क्योंकि आपका ये माइक म्यूट था। मैम ये इसकी ना बैक साइड है, और मैंने इस पे ये लगाया हुआ है चैपिंग फोम। ठीक है। और क्या नहीं हो रहा, क्या आप कह रहे हो कि नहीं? मैम मुझे इसकी ना ये एजेस का इश्यू आ रहा था। ये देखे ना, इसकी तो फिर से ही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मसला आ जाता है। तो ये छोटे मैट्स हैं, इनकी भी देखे ना ऐसे हाँ सही बन रहे हैं, कुछ पे ये देखें इश्यू आ जाता है। हाँ, थ्रेड्स नहीं कर रहे हैं और वो चीज हो रही है बिकॉज पहली बात जो ये जो आपका स्टफ है ना, रिबन स्टफ है, ठीक है, उससे ये मसला होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको ना मशीन से वो करवा लो, एप्लीक करवा लो, बीट एप्लीक करवा लो, ब्राउन कलर में ब्राउन एंड गोल्डन बीट्स ऐड करके, ठीक है? डल गोल्ड जो होता है ना, वो ऐड करवा लो, ठीक है? तो वो आपकी ना ये प्रॉपरली फिनिश हो जाएगा। अगर आप हैमिंग कर सकते हो तो हैमिंग कर लो। अगर आप हैंड एप्लीक कर सकते हो विद बीड्स, यू कैन यूज दैट टेक्निक ऑन इट, ठीक है? उसमें ये पूरा नीट हो जाएगा। बिकॉज ये रिबन है ना, रिबन का जो स्टफ है ना, वो थोड़ा होता है ऐसा, ठीक मैम। ठीक है? और ट्राई करो आप इसको, ये जो व्हाइट है इसको थोड़ा फोल्ड करो, 1/2 इंच पे लेकर जाओ। मैम इसको मैम ये बुकरम लगा हुआ ना, स्मॉल टेबल मैट का करके देखो, आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा? मैम ये देखें, इसको हाफ कर दो। जब आप ऐसा करो, मशीन क्लिक करवाओ, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर ये फिनिश आ जाएगी। ठीक है मैम, सारों को हाफ कर दूं यानी कि? ठीक है, हाफ कर दो आप इसको, और वो जब वो बीच में बेंड करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी ये नीटनेस आ जाएगी। आपको पता है ये क्यों नहीं नीट लग रहा? क्योंकि आपने वो बहुत चौड़ा ये यूज कर लिया रिबन, ठीक। और वो बहुत जंप कर रहा है, इसलिए आपको ना आपकी जो वीविंग है वो खत्म हो रही है बीच में से। जी मैम, बाकी फिर यानी कि इसको मैं वो करवा लेता हूँ, ठीक है, और हो जाएगा काम। ठीक है मैम, मैं करा के आपको फिर दिखाता हूँ। और ये जो आपने ये जो लगाई है सिल्वर
ये क्यों ये मैम, लगाई? ये वाली? नो, नहीं 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 नहीं, ये हाँ ये। मैम एक्चुअली पहले मैंने इसको ना एक वो लेस लगाई थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने इसके ऊपर रिबन लगवा लिया। ये काम करने से पहले ना प्लीज मेरे से पूछ लिया करो। इतना काम करके ये उतर सकती है? मैम उतर जाएगी शायद। जी मैम उतर सकती है। चलो इसको आप उतारो। ठीक है मैम, उतार देंगे। इसको उतारो और ये करो, और फिर मुझे बता लेना, मुझसे पूछ लेना कि ये सही है, क्योंकि इतनी मेहनत करके खराब नहीं करना इस चीज को। ठीक है मैम। एंड अनु, आप जब घर जाओगे ना, आपने पिक्चर लेके आपने ग्रुप में सेंड करनी है। अगर वहां उसमें कोई मसला आ रहा होगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लो। ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। guys। और रिमशा, आप भी बेटा कुछ पूछना है आपने? नो मैम, ऑल क्लियर। और रोहा कहाँ पे? रोहा को बोलो मुझे फौरन व्हाट्सएप करे मुझे असाइनमेंट अपनी। रिमशा आप करोगे रोहा को टेक्स्ट, बल्कि कॉल करो। तो मैम कह रही है कि मुझे आज अभी जितना भी काम किया व्हाट्सएप करो पिक्चर। ओके ठीक मैम, है? मैं और ठीक फिर है। उसको बोलो कि गूगल क्लासरूम में अपडेट कर सकती है, उसके लिए वो ब्लॉक तो नहीं हो गया उसका अकाउंट, तो ठीक है मैम। अदरवाइज व्हाट्सएप तो वो मुझे करे ना। ओके मैम। ओके मैम हाँ जी अनुष। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप ना काइंडली अभी सेंड कर देना, फिर मैं घर जाके सुन लूंगी। स्टार्टिंग से मैं ले नहीं सकी। बाकी लेक्चर्स आप लोगों के अपलोडेड है? कोई ऐसा लेक्चर जो आपको कोई मसला आ रहा हो? नो मैम, बाकी अपलोड है, बस यही रह गया है। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। मैम ये जो आपने फिनिशिंग का बताया है वो मुझे समझ नहीं आई, क्या बोला आपने उसके लिए? आप मैंने सिर्फ अभी हसीब को या वो स्टूडेंट जिनको वो लग रहा था मुझे, मैंने उनके अकॉर्डिंग उनको बात बोली है। क्योंकि आप मैम मैंने अभी जो मैंने स्टार्ट की हुई है ना, मैंने वो उस पे की हुई है ना अपने आप मुझे ऐसा करो, पहले आप मुझे सेंड करो। आपके असाइनमेंट में अगर कोई रिक्वायर्ड होगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग सॉरी आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ठीक है? ओके इसमें मैम। ऐसा नहीं है कि मैं अगर हसीब को मैं बीट्स का कह रही हूँ तो वो रिमशा को मैं कह दूं। रिमशा को मैंने पाइपिंग की सजेशन दी हुई है। ठीक है? हर एक के डिफरेंट डिफरेंट है। मैम बीट्स तो मैंने भी अपने रखे हुए हैं, बट वो मैंने एंडिंग पे लगाने हैं, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी वो के लगाऊं या ना। ठीक है मैम। ठीक है मैम मैं जैसे ही घर जाती हूँ ना तो फिर मैं आपको कर लूंगी, लेट ही फ्री हूँ वैसे तो फिर चली जाऊंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम लेक्चर काइंडली अभी अपलोड कर देना। मैं आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। Okay, अल्लाह ma'am. हाफिज़ मैम।